Yes, so let's start the lecture. I guess that you all can listen to me. Yes, sir. Yes, sir. Good. So what we have seen so far is that classification and regression. We wanted to learn a function that will take an x, going to give us that dependent value y. This is the function that we are trying to learn, parameterized over theta. We come up with a loss function and then say that randomly this theta, the things that we wanted to learn, they are initialized, gradient descent, and we optimize this theta, j theta, in such a way so as to minimize this j theta, so as to get the best possible theta using this equation. The point is that what type of j thetas that we can have, loss functions. There are so many different types of loss functions which are available. Then we have seen MSE and MAE and have seen that they have certain pros and cons. And then we started to see that L2 and cross entropy type of loss. So from L2, we have also moved to cross entropy loss. There is some lecture which is also available in which I have proved that. So it's public, it's available on YouTube. If you are interested, you go and see that, in which we have shown that L2 to cross entropy, how we have, derived that L2 is having certain issues and that can actually be resolved in cross entropy. But anyways, we have also again shown that L2, which is something like this, and cross entropy, which is something like this. So what we have seen is that the gradients for both of them are completely different scales. Here, if you are having 1.8, here you are having 10, which is actually a very big difference. And actually why this is happening, that is the reason because of which we started to use cross entropy loss. It's having huge amount of gradient when your values are changing, and because we work on discrete variables. And then we have also seen that you have multi-class and multi-label things, and also understood that this is your sigmoid activation function. Softmax is also an activation function, or you can say softmax is actually a function which is squashed between things between 0 and 1, which add up to 1. So it can actually be properly can give you probability for each and every class. And we have said that when we say cross entropy, this is actually, first we apply sigmoid or softmax, and over that we apply cross entropy, which is being shown over here, that your scores are coming. And given these scores, you apply softmax, and I guess, and then you apply cross entropy. Then yes, we have shown that this cross entropy here, and if SP is your positive class, then cross entropy can actually be defined as this, and its derivative can actually be computed like this. So I always request that please do this derivation. It's very straightforward, simple. But once you do, then only you will be able to understand that when you differentiate your cross entropy with respect to the negative class scores, still you are going to get the things. It's not going to be cancelled out, because it is actually going to be dependent upon negative things as well in the denominator. Yes, so till now, is there anyone who is having any issue or doubt or problem? No issues. Let me see. Yes, Saurav Sehgal is given. Saurav, who is Saurav Sehgal? Can you listen? Yes, sir. So you are that MS student? No, sir, I am a second year student. Oh, you are second year student. Okay. Okay, fine. So this is okay, Saurav, right? Yes, sir. Okay, fine. So now what we are going to do is that that's another loss, and this is actually the focal loss that we are going to talk about, and it's actually the cross entropy loss that gives more weight to the samples which are misclassified. So what happened is that you are having huge amount of samples
All of these things are available for you. Huge amount of samples are there. But the point is that for each and every sample, you are going to get a loss. Do all of these losses are equally important? And what we understand, and in this paper, what they have shown, I mean, it's been given by very big guys like Kamin He or and other guys. I mean, those who work very well in this deep learning domain, and they have talked about some dense object detection, in which given an image, there are several different types of objects which are available. And what they have talked about is that there is actually a huge amount of class imbalance, that certain class data is very less and other classes are very high. So this is class 1, you are having huge amount of data, and for class 2 you are having only 2 things. If such a case, then most of the time the amount of because this class is dominating, then dominating class is going to have huge amount of losses with respect to that, and loss which is going to be coming from these 2 guys, it's always going to be very, very less. And if that is the case, then your network actually tries to optimize your loss most of the time with respect to them. And this is going to create, performing very well over certain classes, and underrepresented classes may not be, properly, the classification can be learned properly. So what they have said is that in this focal loss, that instead of giving each and everyone the same amount of weight, each and every sample, if certain samples which are correctly classified, then I'm not going to give you that much amount of the loss that I'm going to get from you. I'm not going to give that much amount of weight. I wanted to give less weight to you. And if if you are misclassified, then I'm going to give huge amount of weight. So samples correctly classified, weight is actually decreased. Misclassified, weight need to be increased. And what they have done is that, just closely see this. This is your focal loss, and for the 2-class classification, SI is actually the score that your network is predicting. Always remember, SI is the score network is predicting. TI is actually the ground truth. This is your cross entropy. If I reduce this, or this is 1 minus SI power gamma. If I make gamma is equal to 0, then this thing becomes 1, and this whole thing become equal to cross entropy, or the binary cross entropy. They said that I am going to give each and every, depending upon your class, I'm going to give a specific weight to you. This weight is 1 minus SI power gamma. What does it mean? It actually means that SI is the score. 1 minus SI is how far you are from the ground truth class. So if my ground truth, if my ground truth is actually TI equal to 1, or you are belonging to the first class, then for that class your value need to be what? Your probability value need to be 1. So how far you are from that? And if you are very far from it, then I'm going to give you more weight. And if you are not that much far from the actual class, your weight is actually going to be reduced, which means that you are close to 1. So if you are close to 1, I'm not going to give that much amount of weight. So focal loss can actually be seen as this. So this is for the binary classification. When TI or your ground truth is 1, it's actually for the first class, then this thing is there. When it's going to be the second class, this thing is there. So is this clear to everyone, that how we are getting from here, how we are coming over here? Sir, Sir, my question is that this loss function is only defined for binary class, or it will applicable for multiple classes also, or the more than 2? Yeah. See, the point is that it's applicable to all, multiple classes as well. Right now we are only showing it for the 2 classes, and if they are 2 classes, then focal loss can actually be defined like this. Okay. Otherwise आपको जो भी आपका SI आ रहा है उसमें 1 माइनस करके आप गामा की पावर चढ़ा देंगे. Okay.
ओके सर, और ऐसा ही है अगर आपने डॉग क्लास की बात कर रहे हैं तो डॉग होने की उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, और सो SI इज ऑलवेज गोइंग टू टेल दैट कि वो ग्राउंड ट्रुथ के कितना पास है, ओके सर, बिकॉज यहाँ पर ये आपको पता चल रहा है। तो ग्राउंड ट्रुथ क्लास ये वाली हो गई, ठीक है। अभी ओके पॉइंट ये आ रहा है, ये सभी को समझ में आ रहा है ना, ये बहुत ही मतलब इसी से बना है और ये सभी को समझ में आ रहा है। लेट अस सी, किसी को पूछना हो तो एक्सक्यूज ये मी वाली सर, बात। हाँ बोलिए। सर T1 इक्वल टू 0 सर, ये वाला एक्सप्लेन कर दो आपकी, मतलब ये वाला फॉर्मूला कैसे बना? अभी मैं बता देता हूँ, अभी बता देता हूँ, ठीक है। तो जहां नहीं समझ में आता है आप मुझसे पूछ लेंगे, मैं तुरंत ही उसको कर भर के आपके सामने दिखा दूंगा। और मेरी एक रिक्वेस्ट है सभी के साथ ये भी होगी कि आप लोग कॉपी पेन भी लेके बैठा करें, क्योंकि बहुत बार अभी तो सिंपल चीजें होंगी, आगे आते आते ऐसी चीजें आएंगी जो ये आपसे रिक्वायरमेंट होगी कि आप लोग कॉपी पेन लें और लिखते जाएं जल्दी जल्दी, ताकि आपको फर्स्ट एंड वो चीज समझ में आ जाए और फिर सेकंड एंड हम लोग उसको यूट्यूब पे डालेंगे, फिर आप अपने पेज पे उसको सुन के और अच्छे से समझ लें। चलिए, तो फोकल लॉस ये पहली बात। तो अगर मैंने लिखा यहाँ पे इसको लिख देता हूँ। So focal loss is going to be equal to 1 minus S1 power gamma T1 log of S1 plus 1 minus S2, ये सेकेंड क्लास के लिए है, T2 log S2। यहां तक किसी को कोई भी इशू नहीं होगा, ये तो सीधा मैंने ऊपर से ही लिख दिया है ना। अभी जिसने ये क्वेश्चन पूछा था वो एक बार अपना नाम बता देंगे, ये वाला मैं करके दिखा सर दूं। ऋतिक। ऋतिक, हाँ ऋतिक, ये देखो, ये वाली इसमें तो कोई इशू नहीं है ना, ये नो जो आ प्रॉब्लम रहा है। सर, यस सर। नो, ओके। अगला पॉइंट करते हैं कि चूंकि ये बाइनरी क्लासिफिकेशन है तो बेसिकली अवर S2 इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1 माइनस S1। तो यहाँ पर आएगा 1 माइनस S1 गामा, और यहाँ पे थोड़ा माइनस भी लग जाएंगे। ये मैंने जो यहाँ पे माइनस लगे हुए ना, ये वाले माइनस आपको दिख रहे होंगे, ये माइनस लगा लिया जाएगा बाद में, मैं जस्ट आपको दिखा दे रहा हूँ दिस। और T1 की वैल्यू क्या है, तो अभी मैं अगर यहाँ पर लिखता हूँ T1 इक्वल टू 1 पहली क्लास के लिए, और एक क्लास है 0, तो T1 इक्वल टू 1 और T1 इक्वल टू 0। तो जब मैंने T1 इक्वल टू 1 रखा, सो दिस थिंग इज गोइंग टू बी इक्वल टू दिस log ऑफ S1, ठीक है। अच्छा, T1 इज इक्वल टू 0 क्या बनाएगा, T1 इज इक्वल टू 0 सिर्फ यहां से आ रहा होगा, और वो क्या बनेगा जाकर के 1 माइनस S2 पावर गामा, और दिस थिंग इज गोइंग टू बी इक्वल टू, जब T1 इक्वल टू 0 होगा तो T2 इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो log ऑफ S2। अब यहाँ पर अगर मैं इसको रख दूं S2 की जगह पे 1 माइनस S1, तो ये हो जाएगा log ऑफ 1 माइनस S1, और ये हो जाएगा 1 माइनस S1 गामा। यही लिखा हुआ है वहां पे, ओके फाइन सर। ये ऐसे रहेगा, थोड़ा लाइव लिखने में थोड़ा बहुत गड़बड़ हो सकता है, ठीक है ना। ये सिंपल सी बात है, बस सिर्फ ये देखना है कि मतलब इट्स एक्चुअली अ बाइनरी क्लासिफिकेशन। तो S1 और S2 के बीच में क्या रिलेशन है, S1 प्लस S2 इज इक्वल टू 0, और T1 और T2 क्या है, ग्राउंड ट्रूथ है, तो या तो T1 1 होगा, और जब T1 1 होगा तो T2 0 होगा, जब T2 1 होगा तो T1 0 होगा। तो ये अपने आप बन करके आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए, ये इन्होंने ग्राफ दिखाया, ये पेपर में इन्होंने, दे हैव शोन दिस ग्राफ, व्हाट दे वांटेड टू शो इज दैट कि ये जो पहला नीला वाला कर्व, गंदा हो जाएगा, नीला वाला जो हमारा कर्व है, ये यहाँ पे आप देखें, ये जो नीला है ये एक्चुअली क्रॉस एंट्रोपी है। अच्छा, शो क्या किया जा रहा है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ द ग्राउंड ट्रुथ क्लास, कोई भी एक सैंपल पकड़ा और उस सैंपल की ग्राउंड ट्रुथ के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये है, यहाँ पे प्लॉट हो रहा है, और उसके करस्पॉन्डिंग लॉस यहाँ पे प्लॉट हो रहा है। तो अगर आपने 1 बोल दिया, तो यही तो आप चाहते हैं, क्योंकि ग्राउंड ट्रुथ होने की प्रोबेबिलिटी तो 1 होनी चाहिए। तो अगर ये 1 है तो आप यहाँ पर हैं, और अगर ये 0 है मतलब कि बहुत ही खराब है, तो आप यहाँ पर हैं, आपकी प्रोबेबिलिटी इस जगह पे। लॉस आपको यहाँ दिखाया जा रहा है, तो आप देख ही रहे हैं कि हर तरह की चीज आपको, जैसे जैसे आप इधर की तरफ आते जा रहे हैं 1 की तरफ, लॉस कम होता चला जा रहा है। और ये हर तरह के लॉस में, चाहे आप गामा इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो गया, क्रॉस एंट्रोपी। तो क्रॉस एंट्रोपी भी जो नीली वाली है, ये धीरे धीरे करके इसको नीचे ले आती है, और हर कोई नीचे ला रहा है, फाइन।
द थिंग दैट दे वांट टू से इज दैट कि जब जो लोग बहुत ज्यादा होते हैं, जिस क्लास के लोग बहुत ज्यादा होते हैं और ये अंडर रिप्रेजेंटेड क्लास है, तो इसका चूंकि इफेक्ट नहीं पड़ पाता, और जबकि ये मिस क्लासीफाई हो रहा है, ये कह रहे हैं कि यार मेरे को एग्जाम नहीं चाहिए, एग्जाम नहीं चाहिए, है ना, लेकिन उनकी बात कोई सुन नहीं रहा। तो हमने क्या किया कि हमने ये देखा कि हमारे नेटवर्क ने क्रॉस एंट्रोपी ने कहा कि जब तुम यहाँ पर आते हो तो भी 1 करता हूँ, और ये गामा है, मल्टीपल गामा की वैल्यू अलग अलग लेता जाओ, 0.5, 1, 2 एंड 5, और आपने देखा कि ये वैल्यू लगातार कम होता जा रहा है, इसका स्लोप नीचे की तरफ आता जा रहा है, नीचे की तरफ आता जा रहा है। मकसद ये है कहने का कि देखिए ये इलाका क्या है ये इलाका वो एग्जाम्पल्स हैं जो दे आर इजिली क्लासिफाइड और बहुत ही अच्छी तरह से क्लासिफाई हो रहे हैं, उनकी स्कोर जो है वो 0.5, 0.7, 0.8, और आप बहुत अच्छी तरह से आपका नेटवर्क इनको समझ पा रहे हैं। तो इनके लॉस बढ़ाना क्यों? तो अगर आपने एक सैंपल पकड़ा, वो सैंपल की वैल्यू आई 0.7, तो लॉस क्या हुआ? क्रॉस एंट्रोपी इतना लॉस कहता था, इसने कहा कुछ लॉस, गामा इक्वल टू 5 कहता है कोई लॉस नहीं है। चलो यहाँ पे भी ऐसा है कि ये इतना कहता था, ये कहता है कोई लॉस नहीं है, लेकिन आप इस जगह पर आए तो ये इतना लॉस कहता था, क्रॉस एंट्रोपी कहता है इतना लॉस है, सॉरी क्रॉस एंट्रोपी इतना कह रहा था और ये गामा वाला कह रहा है ये इतना लॉस है। बेसिकली अगर आप एक ऐसे मिस क्लासिफाइड सैंपल है, वो बेसिकली इधर की तरफ होगा मिस क्लासिफाइड। ये वाली जो जोन है ये प्रॉपरली क्लासिफाइड है, और अगर प्रॉपरली क्लासिफाइड तो सभी कोई चीजों को नीचे ला रहा है, और हमने अगर गामा की वैल्यू 5 अब अगर आप एकदम बढ़ा देंगे तो वो बिल्कुल ऐसा हो जाएगा। तो वैसा भी नहीं करना है, इसको इतना वेट नहीं देना है इन लोगों को, अगर आप देखें कि इन लोगों को इतना वेट नहीं देना है, तो हमने इनका वेट रिड्यूस कर दिया, और आप देखें कि इस जगह पे आकर के इट्स नो, ऑलमोस्ट नो वेट, 0.6 के ऊपर हो आपकी बात ही नहीं सुनी जाएगी। अगर आप 0.6 के ऊपर है तो आप कुछ भी कहते रहे कि नेटवर्क को और नीचे लाओ, और बढ़िया करो, और बढ़िया करो, इससे बढ़िया करेंगे तो इनके लिए तो चलने लगेगा, दूसरों के लिए खराब हो जाएगा, दूसरी क्लासेस के लिए जो अंडर रिप्रेजेंटेड है। और अगर अंडर रिप्रेजेंटेड क्लासेस है जिनके के लिए आपका स्कोर 1 आना चाहिए था, लेकिन आप यहाँ आ रहे हैं, तो इतना लॉस दूंगा। आई गेस कि दिस इज ओके एंड क्लियर। दैट्स अ फोकल लॉस। उन्होंने इसके बारे में बहुत सारी एनालिसिस करके दिखाई और वेरी गुड परफॉर्मेंस दे हैव शोन। Sir, I ठीक have a है, question. यस, Sir, is gamma hyperparameter? gamma is fixed. You can say that it's a hyperparameter for the network, but it's not learned. It is fixed. जैसे लेयर होती है, तो लेयर के अंदर आप लगाते हो कितनी लेयर लगेंगी, उसमें कितने न्यूरॉन लगेंगे, तो वो जैसे वो एक हाइपर पैरामीटर है, तो हमें वो फिक्स करना रहता है। और इन्होंने गामा को इसी तरह से दिखाया है कि डिपेंडिंग अपॉन योर प्रॉब्लम एंड द अमाउंट ऑफ अंडर रिप्रेजेंटेशन, गामा की वैल्यू डिपेंड करती है। Okay, sir. ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया। तो यहाँ से हम एक डिटूर लेने जा रहे हैं और एक शॉर्ट रिकैप मैं कह सकता हूँ, जिन लोगों ने हमारा पुराना कोर्स कर रखा है, एक बहुत ही फास्ट और शॉर्ट रिकैप हम मैट्रिक लर्निंग का लाने जा रहे हैं, और उसके बाद हम लोग एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में बढ़ रहे होंगे। तो वो जो डिटूर है वो हमें लेके जाता है जूम पे नहीं, नोटेबिलिटी पे। ये हमारे, तो बहुत ही फास्ट जाएंगे, और हमें ये समझना होगा कि डिस्टेंस मेट्रिक लर्निंग का मतलब क्या है। जब मैं इसको पढ़ाता हूं तो मैं कहता हूं कि आई एम हैविंग अ वेरी स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्वेश्चन। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, क्लासिफिकेशन, जिसमें एक इमेज है, नेटवर्क को दिखाएंगे, बोलेंगे कैट है, डॉग है, या विच क्लास इट्स एक्चुअली बिलोंगिंग। नाउ आई एम चेंजिंग द क्वेश्चन, आई एम गोइंग टू शो यू 2 इमेजेस। जैसे कि दैनिक जागरण में पहले आया करता था, 2 इमेजेस बोल के कहते थे कि इसके 10 डिफरेंस बताओ। तो जब मैं एक इमेज को दिखा के आपसे कहता हूं कि बताओ कि ये कैट है कि डॉग है या क्या है, तो आपको इमेज के बारे में समझना पड़ता है बहुत बार कि ये इमेज में हो क्या रहा है क्या, और अगर एक्चुअल में ये कैट है कि डॉग है। लेकिन अगर मैं आपको 2 इमेजेस दिखाऊं, उनके अंदर क्या बना है मुझे पता नहीं, ये है, एक ये है और एक ये है। या फिर मैं कहता हूं कि एक इमेज ये है जिसमें डंडी बनी है और एक इमेज ये इसमें डॉट बना है। अब आपको ये भी नहीं पता कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बस आपने कहा सर इसमें लाइन बनी, इसमें डॉट बना है, आपको पता भी नहीं कि ये क्या बोल रहा है, लेकिन आप डिफरेंस निकाल सकते हैं। सो मेट्रिक लर्निंग इज एक्चुअली ट्राइंग टू लर्न अ distance between two images, two objects, two things which are similar or they are different. अगर ऐसा है तो इसकी नेटवर्क की डिजाइन भी अलग होगी।
और हमें बहुत बार मैट्रिक लर्निंग करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि हमें हैंड राइटिंग रिकॉग्निशन करना पड़ता है, जिसमें हमें ये हिस्सा कट के आया, मैंने पूछा बताओ ये क्या है, तो आप बोलेंगे ये 1 है, ये क्या है, ये 6 है। तो अगर ये 6 के जैसा है तो एक तो इसको आप इसे क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम की तरह पोज कर सकते हैं कि ये डिब्बा आया और आप बोलें कि ये 6 की क्लास के जैसा है कि 1 की क्लास के जैसा है कि 2, तो ये बेसिकली एक क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है। इट कैन ऑल्सो बी सीन एज अ मेट्रिक लर्निंग, जिसमें कि अगर मेरे पास 6 पहले से रखा हुआ है, मैं बोलूं कि ये और ये जो हिस्सा है आर दे सेम और सिमिलर और डिफरेंट, दोनों की लर्निंग अलग तरह से होगी। सिमिलरली फेस रिकॉग्निशन के अंतर्गत होता है, जिसमें कि हम लोग बहुत सारे फेसेस देख रहे हैं और हमें ये बताना होता है कि यस इफ दिस इज अ फेस, ये किसको बिलोंग करता है, ये फेस है, ये किसको बिलोंग करता है। तो जहां पर भी रिकॉग्निशन, वेरिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन आता है, वहां पर ये चीज लगती है। इसी में मैं एक छोटी सी बात और बता देना चाहता हूँ कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वेरिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन। वेरिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन और वेरिफिकेशन में क्या डिफरेंस है? ये डिफरेंस है कि आई एम वेरिफिकेशन इज गोइंग टू वेरीफाई अ क्लेम दैट द, so I am having, my name is Aditya and I am giving new data, this is enrolled data in my database, database में रखा है और ये मेरा करंट सैंपल है। करंट सैंपल को देते हुए मैंने कहा कि मैं आदित्य निगम हूं, ना प्रूफ दिस। So I am saying that I am Aditya Nigam and you need to verify that whether I am Aditya Nigam or not. So it's actually 1-to-1 mapping. What does it mean? It's actually that I am matching this image with the stored template of Aditya Nigam and checking that what is the score. If this score is more than a threshold or less than a threshold, is going to tell that whether my claim is verified and it is correct or incorrect. That is verification. Identification. So in verification, I am giving my template and I'm also giving a ID, that this template belongs to this ID. So in database, you go and check that what is the enrolled template of this ID and match both of them. Identification, I'm only giving the template and you don't know that who is this guy and you need to identify. So you go into your database and take this template and match with each and every one and then come up with that what is the actual identity. So that is why it is 1:n. So verification is there, identification is there. There is one more concept that I wanted to add, is open set and close set. When you have, this is your database and you are having 6 identities, identity subject number 1, subject 2, subject 3, subject 4, subject 5 and subject 6. Now what does this close identity mean? जब मैं मैचिंग करूंगा तो जब भी मेरे पास कोई नया सैंपल जिसकी मैं टेस्टिंग करने जा रहा हूं, this testing, this image, I don't know that who is this guy, लेकिन ये इन्हीं 6 में से कोई होगा, that is closed environment. और अगर ये जो आइडेंटिटी जिसकी निकालनी है ये इन 6 से बाहर भी हो सकती है कोई, so that is open set environment. ओपन सेट का मतलब जिन पे मैंने ट्रेन किया हुआ है उन्हीं पे अगर मैं टेस्ट करता हूं तो वो क्लोज्ड सेट है। जिन पे मैंने ट्रेन किया और ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा लेकर के अगर मैंने मैट्रिक लर्निंग के थ्रू ट्रेन कर रखा है नेटवर्क, तो क्लासिफिकेशन में ओपन सेट सिनेरियोज आर वेरी वेरी चैलेंजिंग। और वो हमेशा क्लासिफिकेशन में, जब आपको मैंने एक क्लास दिखाई ही नहीं और आपको फाइनल लेयर पे कहता हूं कि फाइनल लेयर में तो उतनी ही न्यूरॉन होंगे, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कम अप विद अ मेथड। तो सभी लोग मैट्रिक लर्निंग पे जाते हैं और कहते हैं कि वी आर ट्रेनिंग अवर नेटवर्क एज अ मैट्रिक लर्निंग नेटवर्क, learning a metric which is going to tell that कि whether this image belongs to this class or not belongs to this class. और यहाँ पर जो open set scenario और closed set scenario है उसका भी मीनिंग यही है कि अगर मेरे पास जब मैं टेस्टिंग करने जा रहा हूं तो जो डेटा है अगर वो ट्रेनिंग सैंपल के किसी सब्जेक्ट का होगा जिसपे हमने ट्रेन नहीं किया है, क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि हमारे पास जो डेटा होता है, ऑल्सो आई नीड टू टेल दैट आई एम हैविंग अ डेटा एंड दिस डेटा इज हैविंग 2 पार्ट्स, ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग। तो मैंने सब्जेक्ट 6 जो मेरे 6 सब्जेक्ट थे ये वाले, इन 6 सब्जेक्ट के आधे डेटा को लेकर के उन पे ट्रेन कर लिया और आधे डेटा पे टेस्ट कर लिया। तो द गुड थिंग अबाउट दिस इज दैट कि जिस भी सब्जेक्ट पे मैं टेस्ट करने जा रहा हूँ उसकी कुछ ना कुछ इमेजेस मैंने देखी हुई हैं ट्रेनिंग के दौरान, लेकिन जिन पे टेस्ट कर रहा हूँ वो इमेजेस नेटवर्क ने कभी भी नहीं देखी थी।
दिस इज एक्चुअली क्लोज्ड सेट। अगर मेरे पास 10 ऐसे और भी सब्जेक्ट होते जिनको कि मैंने कभी देखा ही नहीं है और उनके ऊपर मुझे टेस्ट करना पड़ता, वो कहलाता ओपन सेट। यहाँ पे किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। इज देयर एनी क्वेश्चन? ओपन सेट, क्लोज सेट, वेरिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन। क्वेश्चन 18% आर देयर। किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है? सर अच्छी हेलो बात है। सर। यस, हाँ एक एक करके बोलिए, चलिए। हाँ हेलो सर। बोलिए, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, आ रही है आपकी आवाज। सर तो फिर ये तो एक तरीके से क्लासिफिकेशन ही है ना? हाँ, लेकिन क्लासिफिकेशन में भी फीचर निकलता है, आइडेंटिफिकेशन या वेरिफिकेशन में भी फीचर निकलता है, बट यहाँ पर एक मेट्रिक लर्न होता है जो दो लोगों के बीच की सिमिलैरिटी या डिसिमिलैरिटी निकालने की कोशिश करता है हमेशा। क्लासिफिकेशन में ऐसा जरूरी नहीं है कि दो लोगों के बीच में, वो एक ऐसा डिस्क्रिमिनेटिव फीचर निकालने की कोशिश करता है जो इसका बेस्ट पॉसिबल रिप्रेजेंटेशन हो। अगर आप यूं देखें कि अच्छे से लर्न हो गया सब कुछ, देन यू आर वेरी हैप्पी, तो बोथ ऑफ दिस थिंग्स में बी रीचिंग टुवर्ड्स द सेम गोल। लेकिन बहुत बार क्या होता है, आप अगर ध्यान से सोचें कि जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि आपको मैंने एक इमेज दिखाई और बोला कि बताओ ये इसमें कैट है कि डॉग है, तो आप बहुत दिमाग लगा के समझेंगे और हो सकता है कि वो मंगल ग्रह से आई हुई इमेज हो और आपको समझ भी ना आए कि इसमें है क्या। लेकिन अगर मैं आप, तो इसका मतलब है कि आपको बहुत सारा सिमेंटिक लर्न करना पड़ता है क्लासिफिकेशन में। अच्छी बात है। मैट्रिक लर्निंग में वो ये जाने भी ना कि अंदर क्या है, वो ये लर्न कर सकता है कि ये दो चीजें सेम है कि डिफरेंट है, ये दो अलग अलग तरह की प्रॉब्लम है। बिल्कुल ऐसा जैसे कि वो आपको दैनिक जागरण में दो इमेजेस आती हैं, आपको सेम और डिफरेंट निकालना है। बहुत बार आपको पता भी नहीं होता कि ये इसमें क्या चीज बनी है, ये कुत्ता बना है कि बिल्ली है, आपको पता नहीं, लेकिन इसके सिर में टोपी लगी है, इसके सिर में टोपी नहीं लगी है। ये लर्न करना आसान होता है। तो हम नेटवर्क को ये ट्रेन करते हैं कि या तो क्लास के लिए डिस्क्रिमिनेटिव फीचर निकालो, दैट इज क्लासिफिकेशन, और या तो फिर दो इमेजेस के बीच में सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी निकालो। ये क्लासिफिकेशन भी किया जा सकता है मैट्रिक लर्निंग के थ्रू, और क्लासिफिकेशन के थ्रू वेरिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन भी किया जा सकता है। बट जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो हमें बहुत ज्यादा लर्न करना पड़ता है, और सेवरल टाइम्स इट हैपेंस कि हमारे पास बहुत ज्यादा डेटा नहीं होता है किसी क्लास का, बहुत सारी क्लासेस का, और इसलिए हम मैट्रिक की तरफ जाते हैं। और अभी आपको समझ में आएगा कि क्यों मैट्रिक लर्निंग करना इज स्लाइटली बेटर देन क्लासिफिकेशन। अभी आगे बताऊंगा। ओके सर। हाँ, और कोई एक, किसी और ने कुछ पूछा था? ये सर लोकेंद्र है। हाँ बोलिए, सर लोकेंद्र बोलिए। सर ये एक्चुअली आपने कहा ओपन सेट को और क्लोज सेट को हम इसको ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा और लेस अमाउंट ऑफ डाटा के बेस पे वो कर सकते हैं डिफाइन। नहीं, लेकिन ह्यूज और लेस में नहीं कर सकते हैं। ह्यूज तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास एक सब्जेक्ट है शाहरुख खान और उसकी आपके पास 20,000 इमेजेस हैं आपके डेटाबेस में, लेकिन एक सब्जेक्ट है लोकेंद्र, उसकी 2 ही इमेजेस हैं। अब इस आधार पे हम ओपन सेट और क्लोज सेट नहीं कह सकते। अगर 20,000 इमेजेस शाहरुख खान की है और 2 इमेजेस लोकेंद्र की है, तो हम अगर क्लोज सेट में कर रहे हैं तो हमने लोकेंद्र की एक ही इमेज लिया और शाहरुख खान की 10,000 इमेजेस लिया और उनके ऊपर ट्रेन किया, और 10 शाहरुख की 10,000 इमेजेस और लोकेंद्र की बची हुई एक इमेज पर टेस्ट किया। ये हुआ क्लोज्ड सेट इन्वायरमेंट। ओपन सेट इन्वायरमेंट का मतलब है कि हमने लोकेंद्र और शाहरुख खान जितनी भी इमेजेस थी उनके ऊपर ट्रेन किया, और टेस्टिंग करते हुए हम लोकेंद्र की इमेजेस भी टेस्ट करते हैं, शाहरुख खान की भी इमेजेस टेस्ट करते हैं, और साथ ही साथ आदित्य निगम की भी कुछ इमेजेस दिखाएंगे और बोलेंगे कि अब ये बताओ कि ये बंदा कौन है। गॉट इट सर। ये हुआ ओपन सेट। ठीक है, ओके। अच्छी बात है। सो नोटेबिलिटी, अब आगे बढ़ते हैं। तो नोटेशन एज अ मेट्रिक, नोशन ऑफ मेट्रिक। तो मेट्रिक का मतलब हुआ कि दो चीजें आपस में कितनी सिमिलर और डिफरेंट हैं। और फंक्शन होता है मेट्रिक, जो होता है ना, मेट्रिक इज एक्चुअली अ फंक्शन जो कि 3-4 तरह की आइडेंटिटी को फॉलो अप करता है। थ्योरेटिकल है, मैं ज्यादा नहीं बता रहा। पहली बात तो ये है कि ये नॉन नेगेटिव होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव, दो चीजों के बीच की सिमिलैरिटी या डिसिमिलैरिटी हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। उस फंक्शन में एक्स और वाई अगर मैं पास कर रहा हूँ और दोनों सेम है तो ये 0 आना चाहिए। एक्स वाई दूं चाहे वाई एक्स दूं तो 1 सेम आना चाहिए। और ट्राइंगल इनइक्वालिटी की ए से जेड
तो अगर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो हमेशा इस डिस्टेंस से ज्यादा होना चाहिए, है ना, ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ये 3-4 इनइक्वालिटी होनी चाहिए मैट्रिक में। ट्रेडिशनल अप्रोचेस थी इनके बारे में कि बहुत से लोग बहुत कुछ लर्न करते थे, फीचर एक्सट्रैक्ट करते थे, सिमिलैरिटी निकालने की L1 नॉर्म से कोशिश करते थे। ये सब डिटेल्स अगर किसी को देखना हो तो वो सीधा मेरे यूट्यूब में लेक्चर पड़ा हुआ है, वहां पे और डिटेल में है। मैं इसको फास्ट कर रहा हूँ, आई जस्ट वांटेड टू गिव यू द एसेंस, रिवीजन टाइप का। गिवन इनपुट पेयर, मेरे पास 2 पेयर है, अभी पेयर पे काम हो रहा है। एक पेयर I1 है, एक I2। मेरे पास 2 इमेजेस हैं। आई वांटेड टू लर्न कि अगर ये दोनों इमेजेस सेम बंदे की हैं या सेम क्लास की हैं तो स्कोर 0 आए, वरना स्कोर 1 है। या फिर 0 से 1 के बीच में एक स्कोर आए जिसमें कि आप बोले कि अगर ये सेम है तो इट हैज टू बी एज क्लोज एज पॉसिबल टू 0 और एज क्लोज एज पॉसिबल टू 1 इफ दे आर डिफरेंट। प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है। नेटवर्क कैसे बनाते हैं, लोगों ने जिस तरह से दिखाया कि अगर ये एक इमेज का पेयर है, ये दूसरी इमेज है, बेसिकली दिस इज फर्स्ट इमेज, दिस सेकंड इमेज, ये एक पेयर है। और इस पेयर को जब मैंने नेटवर्क को दिखाया, आप समझ रहे हैं ये एक नेटवर्क है, ये सेम नेटवर्क है, ये सेम नेटवर्क इसको लेता है। और एक यहाँ पर अगर मान लें कि ये क्या है, ये n डायमेंशनल फीचर वेक्टर है, तो एक इमेज आई इमेज को उठा के, जो ये नेटवर्क है जो कि कोई एफ फंक्शन को सिमुलेट कर रहा है, थीटा पे पैरामीटराइज हुआ है, ये इसको एक n डायमेंशनल फीचर स्पेस में प्रोजेक्ट कर देता है। किसी भी इमेज को n डायमेंशनल फीचर स्पेस में प्रोजेक्ट करता है। देन मैं क्या करता हूं कि अगर मैंने ये नेटवर्क बनाया है तो ये इस इमेज को भी उसी स्पेस में प्रोजेक्ट करता है, दूसरी इमेज को भी उसी स्पेस में प्रोजेक्ट करता है, और उस स्पेस में L2 डिस्टेंस निकालने की कोशिश करता है, नॉर्मलाइज्ड। इसका मतलब क्या होता है कि हम ये फीचर और ये फीचर दोनों को निकाल के यूनिट स्फीयर पे प्रोजेक्ट कर देते हैं। यूनिट स्फीयर पे प्रोजेक्ट करने क्या मतलब है कि अगर मेरे पास कोई भी फीचर आया, मान लीजिए कोई भी फीचर है x, तो x डिवाइडेड बाय नॉर्म ऑफ x, तो उसका नॉर्म क्या हो गया, 1 के बराबर हो गया। ये तो यूनिट वेक्टर हुआ ना। अगर मान लीजिए एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, तो ये क्या है, अगर मैं इसका एक यूनिट वेक्टर बना दूं तो वो ये है। तो यही होगा यूनिट नॉर्म, या यूनिट नॉर्म बनाने के लिए हम उसको उसी के नॉर्म से डिवाइड कर देते हैं और वो यूनिट स्फीयर पे या यूनिट सर्कल पे या यूनिट हाइपर स्फीयर पे प्रोजेक्ट हो जाता है, डिपेंडिंग अपॉन उसका खुद का क्या डायमेंशन है। तो ये इमेज एक फीचर आया, ये दूसरी इमेज ये उसका फीचर आया, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कम होना चाहिए अगर सेम है, ज्यादा होना चाहिए अगर डिफरेंट है। ऐसा नेटवर्क हम बनाना चाहते हैं, इसीलिए इसको CMEs नेटवर्क कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये शेयर्ड नेटवर्क है। ये शेयर्ड इसलिए है क्योंकि ये दोनों इमेजेस को सेम स्पेस में तो भेजे। अब अगर एक इमेज को उठा के आपने लंदन भेज दिया और एक को उठा के आपने जो है USA भेज दिया, अमेरिका, तो आप उसके बाद इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो कैसे न मैच करेगा। हमें एक कॉमन स्पेस में इन दोनों को प्रोजेक्ट करना पड़ता है। कॉमन स्पेस ये लर्न कर रहा है, और ये क्यों कॉमन स्पेस है, क्योंकि ये दोनों नेटवर्क सेम है। ये नेटवर्क जो है यही सेम शेयर्ड वेट्स है। इस नेटवर्क का जो वेट है वही इसका वेट है, और ये शेयर्ड वेट है, इसलिए इसको CMEs या ट्विन्स नेटवर्क कहते हैं। तो ये नेटवर्क ऐसे ट्रेन किया जाता है, इस तरह से ट्रेन किया जाता है कि अगर इसको मैं पेयर दिखाऊं सेम बंदे के, तो ये इसको क्या करे, ऐसे स्पेस में प्रोजेक्ट करे जहां पर यदि इसी बंदे की जो इमेजेस ये देखे तब तो ये बोले कि ये पास में है और स्कोर 0 के आसपास है, डिफरेंट लोगों की देखे तो ये 1 के पास है। तो इसको करने के बहुत सारे तरीके थे। लोगों ने शुरुआत से स्टार्टिंग किया, सबसे पहले तो ये दोनों फीचर को आपस में ही कॉन्कैट करके और दूसरे धीरे धीरे गिराते गए और अंतिम में ले आके इसको बाइनरी क्लासिफिकेशन बना दिया, 0 या 1 सॉल्व करने की कोशिश की बाइनरी क्लासिफिकेशन से। बट असेंशियली जो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट एग्जैक्ट बन के आई कि अगर वो बाइनरी क्लासिफिकेशन है और सेम है तो 0 आए, डिफरेंट है तो 1 आए। और लोगों ने यूं भी किया कि फॉर्मलाइज्ड एज कि अगर ये 0 और 1 एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ सकती हैं तो एक वैल्यू आए जो 0 से 1 के बीच में है, और अगर वैल्यू t कोई एक थ्रेशोल्ड चुना गया, उस थ्रेशोल्ड से कम है तो वो सेम क्लास है, थ्रेशोल्ड से ज्यादा है तो वो डिफरेंट क्लास है। फिर इन्होंने इस नेटवर्क को ट्रेन करने की कोशिश की, जिसमें कि ये D का मतलब है कि अगर x1 इमेज एक नेटवर्क से पास हुई और उसका DX1 फीचर बना, तो ये जो नॉर्म आता है, नॉर्म बेसिकली L2 वेक्टर है, L2 डिस्टेंस बिटवीन दीज टू फीचर्स, ये कम होना चाहिए अगर सेम बंदे की इमेज है। सेम ही बात है, हम लोग बार बार बता रहे हैं।
आप इसको देख ही रहे होंगे कि ये एक इमेज है, ये दूसरी इमेज है, ये नेटवर्क के अंदर जाती है, सेम नेटवर्क से ये फीचर निकलता है, ये फीचर निकलता है, और दिस थिंग हैज टू बी स्मॉल बिकॉज दे आर सिमिलर इमेजेस। इस फॉर्मुलेशन में क्या प्रॉब्लम है? इस फॉर्मुलेशन में कोई प्रॉब्लम है जो कि हम किसी से पूछ लेते हैं। जैसे कि ये प्रॉब्लम हमें पूछनी ऐसे किसी से चाहिए जिसने हमारा पहले का कोर्स न किया हो, लेकिन प्रदीप से भी पूछ सकते हैं। प्रदीप, आप प्रदीप हैं? जी हाँ सर, हाँ सर। प्रदीप, ये वाला देखो, आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं कि ये जो फॉर्मुलेशन है, इसमें क्या फॉर्मुलेशन है कि एक नेटवर्क है जो GW फंक्शन को लर्न कर रहा है, तो ये पहली इमेज देखता है तो ये फीचर बनाता है, दूसरी इमेज देखता है तो ये फीचर बनाता है, और इन दोनों के बीच का L2 निकालता है तो ये आता है, और DW जो है वो फाइनल स्कोर है, और ये स्मॉल होना चाहिए। इस फॉर्मुलेशन में क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम दिखती है आपको? हाँ सर, प्रॉब्लम ये है कि अगर हम सेम इमेजेस ही ट्रेन करेंगे, मतलब जो जो चलो, सिमिलर अच्छा, तुमने इमेजेस सही बात बता दी, सही बात बता दी। अच्छा, आप जब सही बोल देंगे तो मैं आपको रोक भी दिया करूंगा, सो प्लीज डोंट वरी। मेरा सिर्फ काम है जो वही है, फोकल लॉस की तरह है, ठीक है ना? अगर आपका लॉस ज्यादा है तो मैं आप पे वेट करूँ, मतलब आपके ऊपर वेट दूंगा। आप सही बता रहे हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो सॉरी, so the point is that कि yes, there is a issue, and the issue is that कि आप सेम इमेजेस को ही आगे दिखाते चले जाएंगे तो नेटवर्क बहुत उल्टी सीधी चीजें सीख सकता है, क्योंकि नेटवर्क है उसको तो ऑन इट्स ओन सीखना है। तो आपने क्या किया कि आपने हमेशा सिमिलर इमेजेस दिखाई और कहा कि भाई तुम इन दोनों को पास ले आओ। अगर सबको पास में लाना है तो फिर तो वो सभी को पास में ले आएगा और सबको सेम वैल्यू बना देगा। उससे पास में और क्या हो सकता है? तो वो ये समझ पाएगा कि यार इन्होंने हमें सिर्फ सिमिलर इमेजेस दिखाई और दिखाते गए, ये इमेज देखो, ये इमेज देखो। ऐसा नेटवर्क लर्न करो कि दोनों की जो बीच के डिस्टेंस है वो 0 आए, क्योंकि हमेशा आप सिमिलर इमेजेस दिखा रहे, तो वो समझ गया कि चलो एक काम करता हूँ, सबको सेम वैल्यू पे ले जाता हूँ एक्स के, और वो जो सेम वैल्यू है वो 0, वो उनके बीच का डिस्टेंस हमेशा 0 होगा। तो ये नेटवर्क ये सीख सकता है। तो इस और सबको पॉजिटिव पेयर क्लासिफाई करेगा। तो इन्होंने कहा इस तरह से काम नहीं चलता है। और कैसे काम किया जाता है कि मैं कभी पॉजिटिव पेयर्स दिखाऊंगा, तो दिस इज एक्चुअली, मैं कभी आपको पॉजिटिव पेयर्स दिखाऊंगा, कभी आपको निगेटिव पेयर्स दिखाऊंगा। जब आपको मैं पॉजिटिव पेयर्स दिखाऊं तो आप वैल्यू को कम करें, दोनों के डिफरेंस को, और दोनों के फीचर के बीच के डिफरेंस को कम करें। और जब मैं आपको निगेटिव सैंपल या डिसिमिलर इमेजेस दिखाऊं तो दोनों के बीच के जो दोनों का जो फीचर है उनके बीच के डिस्टेंस को ज्यादा करें। तो एक एग्जांपल के तौर पे ये एक बैच बना के दिखा दिया मैंने, इसमें मैंने 6 पेयर दिखाए, I1, I2, I3, I4, I5, I6, 7, 8, 9, 10। 0 का मतलब है कि वो सेम है या डिफरेंट है। अगर वो सिमिलर है, मैंने हो सकता है उल्टा दिखाया हो, अगर वो सिमिलर है या डिफरेंट है, इसके आधार पे वो यहाँ पे फीड होंगे। ये दोनों सिमिलर, ये तीन जो दोनों सिमिलर है, ये लोग सिमिलर है। सिमिलर है, सिमिलर में जाए और स्कोर को 0 की तरफ ले जाए। डिसिमिलर है तो डिसिमिलर में जाए और डिसिमिलर के स्कोर को 0 ले जाए। तो आपका जो नेटवर्क है वो आप 2 इमेजेस देखता है और उसको ये भी पता होता है कि ये जो दोनों इमेजेस हैं ये सेम की हैं कि डिफरेंट की। और उसके बाद उसे ऐसे फीचर्स लर्न करने हैं कि अगर वो सेम इमेजेस, सेम बंदे की इमेजेस के फीचर हैं तो वो उनके डिफरेंस को कम होना चाहिए, और डिसिमिलर इमेजेस के फीचर्स हैं तो उनके बीच के डिस्टेंस को ज्यादा होना चाहिए। तो टोटल लॉस क्या बनता है? पॉजिटिव पेयर्स में आपका जो लॉस आ रहा है और नेगेटिव पेयर्स में जो आपका लॉस आ रहा है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव पेयर वाला फंडा क्या हुआ, तो आपके सामने मैंने फिर से दिखाया कि अगर ये एक इमेज है और इसके ऊपर हम ये दिखाते हैं कि ये है क्वेरी और ये है पॉजिटिव, नेटवर्क सेम शेयर्ड पैरामीटर पे जाते हैं और मुझे क्या निकालना है? यूक्लिडियन डिस्टेंस। तो सिमिलैरिटी बताता है यूक्लिडियन डिस्टेंस के हाउ सिमिलर दे आर। अगर ये दोनों सेम है तो ये वैल्यू यूक्लिडियन डिस्टेंस या लॉस इनके बीच में कम होना चाहिए। फाइन। दूसरी बात आती है, और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दें, क्योंकि या इसके लिए एक लॉस चलता है, इसके लिए दूसरा लॉस चलता है। उसका कारण है, अभी आपको वो भी समझ में आएगा। पहला पॉइंट ये है कि इसके लिए हम लोग यूक्लिडियन डिस्टेंस निकालते हैं। तो जो पॉजिटिव पेयर ऑफ इमेजेस हैं, हम देखते हैं इन दोनों के बीच का जो L2, इन दोनों के फीचर्स के बीच का जो L2 है उसको नीचे करो। निगेटिव पेयर के बीच में क्या होता है अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, उसको हिंज लॉस कहते हैं। क्या मतलब है इसका? तो इस मतलब के पहले अगर आप ये देखें कि अगर ये दोनों इमेजेस निगेटिव सैंपल से आ रही हैं, मतलब दे बोथ डोंट बिलोंग टू द सेम थिंग, तो हमारा कहना क्या है, जरा ध्यान दें, ये जो लिखा हुआ है ये है हिंज लॉस,
पढ़ने में अजीब सा लगता है, भाषा में आपको समझा देता हूँ, 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। दिस लॉस इज ओनली टेलिंग दैट हाउ क्लोज xn और xq आर विद रिस्पेक्ट टू मार्जिन। कहने का मतलब ये है कि xq ये है, xq मतलब मेरी क्वेरी, क्वेरी का जो फीचर है वो निगेटिव सैंपल के फीचर से कितना दूर है, और अगर तुम निगेटिव सैंपल से अगर मेरी क्वेरी जो है वो मार्जिन, एक मैंने चुना, एक मार्जिन है, मार्जिन का मतलब है कि कम से कम इतना डिस्टेंस होना ही चाहिए, मुझे मैनेज करना है, मुझे ऐसा नेटवर्क बनाना है जो क्वेरी और नेगेटिव के बीच में कम से कम इतना डिस्टेंस मैनेज करे। अगर मुझे ऐसा करना है तो मुझे ये देखना होगा कि अगर मेरा क्वेरी और नेगेटिव के बीच में इससे कम डिस्टेंस होता है तो पेनलाइज कर दो, और अगर इससे ज्यादा डिस्टेंस होता है तो कोई पेनल्टी मत दो। फिर से बताता हूँ, हमें मिनिमम डिस्टेंस मैनेज करना है किनके बीच में, क्वेरी और नेगेटिव के बीच में हमेशा। तो लॉस कैसे बनाया, लॉस ऐसे बनाया कि अगर एक n है xn और वो क्वेरी से इतने डिस्टेंस पे है और वो मार्जिन से ज्यादा है तो कोई लॉस नहीं है तुम्हारा। मैं आपसे, मुझे कोई मतलब नहीं है आपके लॉस से, चाहे वो कैसा भी हो, क्योंकि मुझे इनके बीच में डिस्टेंस पैदा करना है, ऐसा नेटवर्क बनाना है जो जब xq और xn को देखे तो बड़े दूर के फीचर बनाए, और ये बड़े दूर का फीचर बना रहा है तो मेरे कोई लॉस नहीं है, जाइए। लेकिन अगर आपने जो एक ऐसा नेटवर्क है जो कि qn और xq और xn के बीच में जो डिस्टेंस बना रहा है वो मार्जिन से कम है, तो मैं पेनलाइज करूंगा आपको। कितना, वो इस पर डिपेंड करता है कि आप कितना पास आ रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू मार्जिन। तो आपने बोला कि दैट इज व्हाई इट इज दैट कि मेरा तो डिस्टेंस ये है, आप मार्जिन के रिस्पेक्ट में कितना डिस्टेंस पे है ये, तो या तो आपकी वैल्यू 0 होगी या तो ये। तो बेसिकली वो क्या कहना चाहता है कि आप अगर इस xn से xq से एक गोले भर के अंदर में मार्जिन भर के डिस्टेंस पे हैं तो आप एरर पैदा करेंगे और आप एक लॉस बनाएंगे। अगर आप इससे ज्यादा डिस्टेंस पे हैं तो मुझे आपके लॉस से कुछ भी मतलब नहीं है, क्योंकि आप एनीवेज मेरा नेटवर्क अच्छा लर्न कर चुका है, मैं उसके ऊपर और प्रेशर नहीं डाल रहा। यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि क्वेश्चन मतलब ये कि अगर आपको कुछ पूछना हो यहाँ पे तो पूछ लें, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था इसलिए मैंने 2-3 बार एक ही बात बता दी। सौरभ वगैरह में से कोई पूछना चाहता है, थोड़ा सा ट्रिकी था। सौरभ वौरभ चले गए, नहीं सौरभ है, सौरभ सहगल एंड ऑल। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है यहाँ पे तो पूछ सकता है। गीतांजलि आपको पूछना है कुछ? सर एक बार रिपीट कर देंगे आप? हाँ मैं रिपीट कर देता हूँ। इसका सिंपल से रिपीटिशन ये है, और सभी लोग इसको ध्यान से सुने, बहुत से लोग हो सकता है ना बोल पाए हो। बहुत ही सिंपल सी बात है ये कि मुझे निगेटिव सैंपल और क्वेरी, मतलब जो 2 इमेजेस हैं, इन दोनों इमेजेस, और ये डिफरेंट लोगों की इमेजेस हैं, उनकी बात कर रहा हूँ निगेटिव पेयर में। मुझे निगेटिव पेयर के बीच में m से ज्यादा मार्जिन चाहिए। मेरा क्वेश्चन ये, मुझे निगेटिव पेयर के बीच में m से ज्यादा मार्जिन चाहिए। अगर m से कम भी डिस्टेंस आया तब तो मैं आपका लॉस लूंगा, और अगर आप वैसे ही m से ज्यादा डिस्टेंस पे हैं तो मैं कोई लॉस नहीं लूंगा। वही चीज यहाँ पर लिख रखी है। यहाँ पे हमने क्या लिखा कि आपके दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है ये, और अगर वो m स्क्वायर से मैं उसको माइनस करता हूं तो अब मुझे ये पता चला कि आपका जो डिस्टेंस है, अगर ये चीज निगेटिव आ गई तो मैं 0 ले लूंगा। क्यों? ये निगेटिव कब आएगी? ये निगेटिव तब आएगी जब ये वैल्यू बड़ी हो, और अगर ये वैल्यू बड़ी है तो इसका मतलब है कि आप m नहीं, आप यहाँ कहीं हैं। तो मैं आपको कह दूंगा कि अच्छा निगेटिव ला रहे हो, 0 लो। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं कुछ नेटवर्क को देना तुम्हारे से, क्योंकि तुम वैसे भी मेरा नेटवर्क बहुत अच्छा सीख चुका है, क्योंकि तुम्हें वो इतना दूर फेंक रहा है क्वेरी से। लेकिन बाई चांस अगर तुम क्वेरी के पास आ जाते हो, क्वेरी के पास आ गए, यहाँ आ गए, यहाँ आ गए, यहाँ आ गए, यहाँ आ गए, तो आपसे आपको कितना लॉस देंगे? इतना लॉस देंगे जितना कि आप मार्जिन से अंदर है। तो दैट इज योर m स्क्वायर से, इसीलिए हमने उसको माइनस किया हुआ है। ऋतिक देव, इज दिस ओके? यस सर। लोकेंद्र, दिस इज ओके? यस सर। फाइन। यस, अरे यार ये तो अच्छी बात है। तो इसके बाद हम लोग आ गए कॉन्ट्रास्टिव लॉस। तो कॉन्ट्रास्टिव तो ये होता है हिंज लॉस। तो क्या हमने बताया आपको कि जो मेरा लॉस है, एक है यूक्लिडियन लॉस, दूसरे के ऊपर लगेगा हिंज लॉस,
और फाइनली जो लॉस बनेगा उसमें दोनों का जोड़ आएगा, यूक्लिडियन लॉस और हिंज लॉस। तो पॉजिटिव पेयर्स के लिए यूक्लिडियन लॉस चलेगा, नेगेटिव पेयर्स के लिए हिंज लॉस चलेगा। इसलिए आप देख रहे हैं y और 1 माइनस वाई किया हुआ है, क्योंकि y की वैल्यू जब 1 होगी तो 1 माइनस वाई की वैल्यू 0 होगी, और जब 1 माइनस वाई की वैल्यू 1 होगी तो इसकी वैल्यू 0 होगी। तो पॉजिटिव पेयर के लिए ये चलेगा, नेगेटिव पेयर के लिए ये चलेगा। ये मैंने फिर से आपके सामने दिखाया था कि जब आप एक बैच बनाते हैं उसमें पॉजिटिव नेगेटिव को बराबर बराबर रख करके काम करना चाहिए, अदरवाइज फिर से वो किसी ना किसी पेयर की तरफ बायस हो जाएगा, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव की तरफ। यहाँ पे इशू है, इशू यहाँ पर भी है, और वो ये है कि एट वन टाइम जब आप इसको एक लॉस निकाल रहे हैं तो कोई भी लॉस या तो ईएल निकल रहा होगा या तो हिंज निकल रहा होगा। भाई यहाँ पर या तो ये वाला अगर सेम है तो इसके लिए आपका ईएल निकलेगा, और अगर डिफरेंट है तो हिंज निकलेगा। आपने इसको बोला कि इसको तुमको एक लॉस को कम करना, एक लॉस को ज्यादा करना। बेसिकली आपका कहने का फंडा ये है यहाँ पे कि एट द सेम टाइम आप पॉजिटिव और नेगेटिव पेयर नहीं देख रहे हैं। जब आप पॉजिटिव पेयर को देख रहे हैं तो सिर्फ पॉजिटिव को देख रहे हैं, जब आप नेगेटिव को देख रहे हैं तो आप सिर्फ नेगेटिव को देख रहे हैं। तो आपको ये नहीं पता चलता कि अगर इसको कम करूं तो कितना कम करूं, और ज्यादा करूं तो कितना ज्यादा करूं, किसके रिस्पेक्ट में ज्यादा। दो इमेज के बीच के डिस्टेंस को कम करो, उसने कहा 0 कर दो, लेकिन 0 कर पाना हमेशा तो पॉजिटिव पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो सिमिलर भी हो सकती हैं दो इमेजेस के बीच में, लेकिन हम तो देख रहे हैं उसमें फेस और बैकग्राउंड सिमिलर हो रहा है, तो नेटवर्क उसको इतना भी पास नहीं ला पा रहा या दूर नहीं ले जा पा रहा बैकग्राउंड के कारण। तो क्या मतलब हुआ इसका कि क्या हम उसे हमेशा इतना छोटा या इतना बड़ा कर सकते जैसा चाहते हैं? तो हमने कहा कि देखो एकदम 0 और एकदम 1 तक ले जाना इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। इंस्टीड लेट्स टॉक अबाउट ट्रिपलेट लॉस। ट्रिपलेट लॉस कहता है कि मेरे पास 1 2 3 चीजें हैं। एक क्या है? एक एंकर है, एक पॉजिटिव है, एक निगेटिव है। मतलब क्या? एक एंकर है, एक पॉजिटिव है, एक निगेटिव है। मैंने एंकर और पॉजिटिव के बीच का डिस्टेंस देखना है, एंकर और नेगेटिव के बीच का डिस्टेंस देखना है, और करना यह है कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस आ रहा है D1 और D2, मुझे इन दोनों डिस्टेंस में पहली बात जो स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि D1 जो है वो कम होना चाहिए, D2 जो है वो ज्यादा होना चाहिए, पहली बात, ठीक है ना। लेकिन अब कोई ये कहे कि D1 कम होना चाहिए तो कितना कम होना चाहिए, तो ये तो पता नहीं, और D2 जो है वो ज्यादा होना चाहिए तो कितना ज्यादा होना चाहिए ये भी पता नहीं। भाई कम होना चाहिए तो 0 कर दे क्या, और ज्यादा होना चाहिए तो 500 कर दे क्या? तो अगर ऐसे नेटवर्क को हमने ट्रेन करने की कोशिश की तो आप अच्छे से समझ नहीं पाता है नेटवर्क, और बहुत अच्छे से नीचे नहीं जा पा रहा होता है, जो कि पीछे हम लोग इंडिविजुअल पेयर देख रहे थे। अब हमें ये बात हमने अब यहां से बोलना स्टार्ट की कि D1 और D2 के बीच में D2 तो ज्यादा होना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात ये कि D1 प्लस अल्फा इतने से भी जो है D2 ज्यादा होना चाहिए। बेसिकली हमने ये बोला कि D1 और D2 के बीच में एक मार्जिन पैदा करो, और वो मार्जिन अल्फा होना चाहिए। मतलब कभी भी एक एंकर लूंगा और उस एंकर के साथ मैं पॉजिटिव पेयर बनाऊं, एंकर के साथ नेगेटिव पेयर बनाऊं, इन दोनों के बीच में जो मेरा डिस्टेंस आएगा वो वो अल्फा से ज्यादा होना चाहिए। एक अच्छा खासा मार्जिन होना चाहिए जिससे कि मैं प्रॉपरली डिस्क्रिमिनेट कर सकूं। तो अब ऐसा हो सकता है कि एंकर और पॉजिटिव के बीच में 0 के बदले 0.2 आ रहा हो वैल्यू, और एंकर और नेगेटिव के बीच में 0.8 आ रहा हो, और ये इजीली इन दोनों के बीच में कितने का 0.6 का मार्जिन बना रहा है। लेकिन आप देखा हमने 0.2 के यहाँ पे 0.2 आया, तभी भी हमने कोई लॉस नहीं दिया। हमारा मकसद है पॉजिटिव पेयर और नेगेटिव पेयर के बीच में मार्जिन पैदा करना, ना कि पॉजिटिव पेयर को 0 पे ले जाना और नेगेटिव पेयर को 1 पे ले जाना। तो ये जब इन्होंने बताया कि ये लर्न करना नेटवर्क के लिए इजी पड़ता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी इमेजेस होती हैं कैट की भी जो डॉग के सिमिलर होती हैं, तो एकदम 0 नहीं बना पाते कैट और डॉग के बीच में। लेकिन कैट टू कैट के बीच में और कैट टू डॉग के बीच में एक मार्जिन पैदा करना भी अगर नेटवर्क अच्छे से सीख जाए तो ये बड़ी अच्छी बात है। और दूसरी बात ये कि हम मार्जिन को पहले 0.1 से स्टार्ट करते हैं, एक छोटा सा मार्जिन पहले पैदा करो, फिर उससे धीरे धीरे करके बढ़ाते हैं। तो 0.1 का मार्जिन, फिर 0.2 का मार्जिन, फिर 3 का मार्जिन, और जैसे जैसे आप बड़े मार्जिन की तरफ जाते जाएंगे आपका नेटवर्क बेहतर और बेहतर डिस्क्रिमिनेटिव पावर पाता चला जाएगा। यही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि ये एक है, ये दूसरा है, आप देख रहे हैं, और ये मार्जिन बीच में इंट्रोड्यूस कर दिया गया कि एंकर पॉजिटिव एंकर नेगेटिव के बीच में अल्फा का मार्जिन बनाओ।
फिर सारे पेयर को चुना गया और सारे पेयर के लॉसेस को जोड़ लेगा। तो इसमें कैसा पेयर बनेगा, इसमें एक्चुअली ट्रिपलेट पेयर बनेगा, जिसमें कि आपके पास एक एंकर होगा, एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा। उसके बाद आपके पास एंकर 2 होगा, फिर पॉजिटिव 2 होगा, फिर नेगेटिव 2 होगा। तो एंकर और पॉजिटिव का मतलब होता है एंकर जो है उसी क्लास की दूसरी इमेज और उसको छोड़ के किसी भी क्लास की एक और इमेज ले लें, इसको ट्रिपलेट कहा जाता है। और ऐसे बहुत सारे ट्रिपलेट बनाए जाते हैं। देयर आर सर्टेन थिंग्स की जो भी आप ट्रिपलेट चुनते हैं वो ट्रिपलेट में एक प्रॉब्लम होती है, और वो प्रॉब्लम ये है कि मोस्ट ऑफ द ट्रिपलेट्स आर इजी। इजी का मतलब ये होता है कि भाई अगर मेरे पास एक सब्जेक्ट है, मान लीजिए ये सब्जेक्ट 1 और ये है सब्जेक्ट 2, और इसकी मेरे पास 1 2 3 इमेजेस और इसकी भी मेरी 1 2 और 3 इमेजेस है, तो मैंने S1 के साथ मतलब सब्जेक्ट 1 के पहली इमेज एक है, सब्जेक्ट 1 की दूसरी इमेज एक है, ये पॉजिटिव है, और सब्जेक्ट 2 की पहली इमेज एक है, तो ये एक पेयर बना। ऐसे में बहुत सारे पेयर बना सकता हूँ। तो एक तो इससे क्या है, मेरे पास डेटा बहुत ज्यादा बन जाता है। इवन तो मेरे पास 3 इमेजेस है, लेकिन मेरे पास ऐसे पेयर बहुत सारे बन जाएंगे। दिस इज वन थिंग। बट द प्रॉब्लम इज दैट कि ये ट्रिवियल होते, बहुत सारे पेयर बहुत ही इजी, क्योंकि ये इमेज और ये इमेज बहुत ही सिंपल है आपस में और बहुत ही सिमिलर है आपस में। तो वो और ये जो इमेज है वो इन दोनों से काफी दूर है, तो इट इज वेरी इजी टू make or come up with a network which can make a margin, very good margin between them. तो बहुत ही आसानी से ये मार्जिन लर्न कर ले जाता है, क्योंकि अगर आपने 10,000 पेयर बनाए तो 10,000 में 9,800 पेयर तो बहुत ही इजी थे। और आप हर बार जब एक बैच बनाएंगे तो चूंकि एक चीज या पेयर्स इतने सारे जो है वो इजी पेयर्स हैं, तो हर बैच में बहुत सारे इजी पेयर अंदर जाएंगे। और अगेन बहुत सारे अगर इजी पेयर अंदर जाते हैं तो जो उनसे लॉस बनेगा वो बहुत ही कम आएगा। जब लॉस कम आएगा तो नेटवर्क ही बहुत धीरे धीरे ट्रेन होगा। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसीलिए उन्होंने कहा कि हमें ट्रिपलेट को माइन करना पड़ता है, तो हार्ड ट्रिपलेट ढूंढने पड़ते हैं। तो अगर 9,800 खराब है तो वो 200 कौन से हैं? तो हम लोग एक बैच बनाते हैं, उसमें बहुत सारे ट्रिपलेट उठाते हैं। उन ट्रिपलेट में से जिन ट्रिपलेट्स जो कि हार्ड ट्रिपलेट हैं, उन हार्ड ट्रिपलेट के द्वारा निकले हुए लॉस से ही नेटवर्क को बैक प्रोपेगेट करें, ना कि सारे लॉसेस के द्वारा। तो हम सिर्फ हार्ड ट्रिपलेट्स पकड़ते हैं। अब बात आई कि हार्ड ट्रिपलेट कौन सा ट्रिपलेट है। हार्ड ट्रिपलेट वो ट्रिपलेट है जिसके की बीच में नेटवर्क मार्जिन नहीं बना पाया, क्योंकि हमारा नेटवर्क है, ये हमारा ट्रेंड नेटवर्क ही है, जो अभी तक का करंटली ट्रेंड नेटवर्क है, इसी को हम लोग ट्रेन कर रहे हैं। हमने एक बैच पकड़ा, इस बैच में खूब सारे पेयर बनाए, इसमें से कुछ पेयर्स ऐसे थे जिनकी के बीच में मेरा नेटवर्क जो है वो मार्जिन नहीं बना पाया, जैसे इस पे नहीं बना पाया, इस पे नहीं बना पाया। अब मैं इसके अंदर तो 100 ट्रिपलेट थे, इन 100 के 100 ट्रिपलेट के लॉस नहीं लिए, मैंने सिर्फ इसका लिया और इसका लिया, और इन दोनों के लॉस को निकाल करके ऐड किया और इसको बैक प्रोपेगेट किया, और फिर मैंने नया ट्रिपलेट बनाया 100। फिर देखा कि कौन से हार्ड ट्रिपलेट है, तो बेसिकली मैंने यहाँ पर एक जगह रखी जहाँ पे मैंने हार्ड ट्रिपलेट्स को रखता जा रहा हूँ। तो पहले मैंने एक बैच बनाया इस नेटवर्क के रिस्पेक्ट में, इस नेटवर्क के रिस्पेक्ट में मैंने एक बैच बनाया, और इस नेटवर्क के रिस्पेक्ट में मैंने एक बैच बनाया, उसमें से जिनके के ऊपर मेरा नेटवर्क मार्जिन नहीं बना पाता है उनको यहाँ पे रखा। तो ऐसे पहली बार में 2 मिले, फिर अगला बैच बनाया, फिर 3 मिले, फिर 7 मिले। जब मेरे पास गुड नंबर ऑफ हार्ड ट्रिपलेट्स हो गए तो मैंने उन सारे लॉसेस को लिया, जोड़ा और इस नेटवर्क को बैक प्रोपेगेट करके चेंज कर दिया। अब मेरे पास एक नया नेटवर्क आ गया, फिर से मैं मल्टीपल बैचेस बनाऊंगा, फिर से मैं हार्ड ट्रिपलेट को माइन करूंगा, फिर से मैं हार्ड ट्रिपलेट को एक थ्रेशोल्ड तक ले जाऊंगा कि मेरे पास 10 20 50 100 हार्ड ट्रिपलेट हो, और फिर मैं उनके लॉसेस को जोड़ के इसको बैक प्रोपेगेट करूंगा। ये ट्रिपलेट माइनिंग हो गई। तो हार्ड सेमी हार्ड वही यहाँ पे बता रखा है, एक फाइनल चीज ये। और उसमें ये है कि कई बार जो नेटवर्क जो बनाया जाता है वो ये नेटवर्क के आर्किटेक्चर के ऊपर है। तो कई बार क्या होता है कि 2 इमेजेस या पैचेस अंदर जाते हैं और पूरी की पूरी लेयर्स, सारी की सारी लेयर शेयर्ड होती हैं। कई बार क्या होता है कि 2 पैचेस अंदर जाते हैं, इसमें से कुछ लेयर शेयर्ड होती हैं, कुछ लेयर शेयर्ड नहीं होती हैं। तो ये शेयर्ड लेयर्स हैं या अनशेयर्ड लेयर्स हैं, उसके बाद फाइनल लेवल पे डिसीजन निकलता है। कल के लेक्चर में ये सब बात कर सकते हैं एक बार कि ये वाली अनशेयर्ड लेयर्स की रिक्वायरमेंट ही क्यों बैठती है जा करके। लेकिन आज हमने क्या देखा, आज हमने मेट्रिक लर्निंग देखा, जिसमें कि हमने ये देखा कि मेट्रिक लर्निंग में
हिंज लॉस क्या होता है, ट्रिपलेट लॉस क्या होता है, यूक्लिडियन लॉस क्या होता है, कंट्रास्टिव लॉस क्या होता है। ये सारे लॉसेस के पॉजिटिव और नेगेटिव भी देख लिया। अगले लेक्चर में हम स्टेट ऑफ द आर्ट पे आना स्टार्ट करेंगे, जब हम ये बात करेंगे कि मेट्रिक लर्निंग